Dear students, I am Professor B.K. Rastogi. I have been teaching English to competition to students of competition examination for the last 50 years. And I have also written important books for RAS, first grade and second grade English. They are complete books and you will find them useful when you read them. I need not appreciate my books. It is for you to find out the merit of the books. Dear students, today I extend my warm welcome to you in the Sarthak Institute. And in my first lecture, I will discuss the syllabus of second grade English for senior teachers. Dear friends, for success in competitive examinations, there are 2-3 important points or 2-3 important things. You should write in your notebooks these 3 sentences. The first is, I can do it. It means I can crack this examination. The second is, there is no substitute for hard work. That is, hard work is the key to success. Without hard work, you cannot succeed, however intelligent and witty you may be. And the third thing is persistent hard work. So you have to work sincerely for a very long period in order to get success. Now we come to the analysis of the syllabus of the second grade English for senior teacher. The details have been given on the screen. The syllabus, the question paper contains 150 questions. Each question carries 2 marks. The total maximum marks are 300. You will be given 2 hours and 30 minutes. That is in all 150 minutes for 150 questions. And another important thing is that negative marking is applicable in the question paper. 1/3 of the marks will be deducted for a wrong answer. I would like to tell you that the question paper and the entire syllabus is divided into 3 parts, or you may call them 3 sections. The first section, here the first part is senior secondary standard. It contains 15 topics on grammar and uses. The detail is mentioned on the screen and it will just be shown to you. The second part, graduation standard, contains 9 topics. Its detail is also given on the screen. It is on grammar, uses and literature. And the third and the last part is on teaching methods. It contains 8 topics. Now we will discuss the syllabus topic wise in all the 3 parts. The first part is the most important part. It is on grammar and uses.
There are 15 topics in this part, and these 15 topics are of senior secondary level. Okay, questions are asked on each topic. As a matter of fact, according to the previous question papers or question papers of the previous examinations, 3 to 5 questions are asked on each topic. कि प्रत्येक टॉपिक पर 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं. ये एग्जामिनर की मर्जी है कि कभी वो एक टॉपिक पे 3 पूछता है, कभी दूसरे पे 4 पूछ लेता है और तीसरे या चौथे पर 5-5 भी पूछ सकता है. देयर इज नो लिमिट एज सच. बहुत पहले तो ये लिमिट होती थी कि सेक्शन या पार्ट जो फर्स्ट है ना, उसमें देयर यूज टू बी 80 questions or 90 questions. But from the last examination, this limit has been removed. It is for the examination to ask questions on topics. The number of questions asked on the topics is decided by the examiner himself. He may ask 5 questions on article. He may ask only 3 questions on articles. He may ask 5 questions on preposition. He may also ask 8 questions on preposition. What I mean to say is that you have to prepare all the topics thoroughly so that you may be able to solve all the questions asked on these topics. First, we will give an idea of the topics in the first part, and then later on we will discuss these topics in detail. कि हम शुरू में जो पहला पार्ट है या पहला भाग है उसमें जो टॉपिक्स है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे. उसके बाद जब हम अपने रेगुलर लेसन शुरू करेंगे तो हम आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल बताएंगे. वी विल एक्सप्लेन द रूल्स in English as well as Hindi. We will give sufficient examples to make you understand all the important rules. And we will also give you practice exercise in the type of questions asked in the examination. Let us start with part first. In part first, there are 15 topics. If we include the subtopics of some of the main topics, the total number comes to about 20. So there are 20 types topics on which questions are asked in the first part of the question paper. जो पहला भाग है उस भाग में लगभग 25-20 टॉपिक हो जाते हैं और इन 20 टॉपिक में एग्जामिनर सब पर प्रश्न पूछता है. देखिए, आई ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 50 years have come to the conclusion that a thorough study of these topics can make you get very good marks in the examination. This section is scoring. Scoring in the sense, if your answer is correct, you get full marks. But as you get full marks in mathematics, in the same way, in grammar, if you do 10 questions correctly, you will be awarded full marks in those 10 questions. The first topic is parts of speech.
This topic is very important. In parts of speech, the main parts are noun, pronoun, adjective, verb, and adverb. Generally, questions are asked on nouns, verbs, adjectives, pronouns, and adverbs. So we have to study in detail about these 8 parts of speech. And in our online lectures, we will certainly discuss each part in detail with important rules by explaining these rules in English and Hindi. And we will give sufficient examples to make your understanding clear and easy. There are about 4 to 5 questions asked on this topic. कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगभग 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न इस तरह के होते हैं, जैसे मान लो ये दे दिया कि माय फ्रेंड इज ए क्रिकेट प्लेयर, तो वो आपसे पूछेंगे कि विच काइंड ऑफ प्रोनाउन इज माई. ठीक है, तो इट इज़ ए पजेसिव प्रोनाउन. तो वो आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज ए पजेसिव प्रोनाउन. ए पजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट्स रिलेशनशिप or ownership या possession. If you say this is my car, it means you possess this car. And if you say my father, it indicates not possession but relationship. So these types of questions are asked in the examination. The second topic is determiners and articles. This is a very important topic, and you have studied this topic right from class 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. And even in first year, you have studied this important topic. First, we will define what is a determiner. Then we will tell you how many kinds of determiners are there. And the most important determiner is articles. There are 3 articles. They are divided into 2 kinds, definite article and indefinite article. So A, N are indefinite articles. D is a definite article. Later on, we will discuss the uses of A and D and other determiners. For example, some, any, many, a, much, more, no, one, all, both. They are determiners. So their uses in detail with rules and examples are to be learnt by you. Dear friends, nothing is impossible in this world. If you devote yourself sincerely to your studies, you will certainly get success. And I say with certainty that most of the students who succeeded in becoming senior teachers, were taught by us. And most of the students, they studied our books
in order to get success in the examination. The next topic is after determiners tenses. देखिए टेंस या टेंसेस are the most important part of English grammar because you cannot construct a sentence without the correct knowledge of tenses. So tense is important. Tense में sequence of tenses and different kind of sentences जैसे conditional sentence in tenses, they are to be learnt by you. The next topic after tense is prepositions. Prepositions are an important part of English grammar. They are used in all kind of structures or all kinds of sentences. For example, on is a preposition, for is a preposition, between is a preposition, by is a preposition. देखिए prepositions indicate different things. They indicate time, they indicate place, they indicate manner, they indicate cause, they indicate direction. So different uses of prepositions are to be learned thoroughly. And we will discuss all the important prepositions. They are about 25-26 in detail in our next lectures. The next topic is modal auxiliaries. देखिए auxiliary verbs are also called helping verbs. What is the difference between the main verb and the helping verb? It means the English verb is divided into two kinds, the main verb and the helping verb. The main verb has a meaning of its own. It does not require the assistance or help of another verb for giving a complete meaning. For example, I teach English. Mathur plays cricket very well. तो ये plays और I teach में teach, they are main. But when we form continuous and perfect or perfect continuous tenses or passive voice, we have to use an auxiliary or a helping verb. जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो अब यहाँ पर टीच है, कंटिन्यूस में टीचिंग आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इसके पहले आपको ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा. आई एम टीचिंग इंग्लिश. ही हैज़ डन हिज वर्क, ये परफेक्ट टेंस है. वी हैव वन द मैच, यहाँ भी हैव आया है. तो ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड in continuous, perfect, perfect continuous tenses and passive voice. जैसे the letter has been written by Mahesh. ये has been, ये auxiliary verb. ये देखिए then what is the difference between an auxiliary verb and a modal auxiliary? Our topic is modal auxiliary. मॉडल शब्द जो है MOOD मूड उससे बना. मूड माने होता है मने स्थिति. तो मॉडल्स दे इंडिकेट वेरियस कॉन्सेप्ट्स. जो मॉडल सहायक क्रिया हैं वो विभिन्न अवधारणाओं को व्यक्त करती है. आप कहेंगे सर अवधारणा तो समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट भी नहीं आया, तो हम आपको समझा रहे हैं. जैसे एक कॉन्सेप्ट ऑफ एबिलिटी, योग्यता की अवधारणा. जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो यहाँ इस अवधारणा को व्यक्त करने के लिए आप केवल मेन वर्ब यूज़ करें तो आपका काम नहीं चले.
आपको इसके साथ में मॉडल सहायक क्रिया यूज करनी पड़ेगी। और एबिलिटी या नो हाउ टू, किसी चीज़ की जानकारी होना या किसी चीज़ में योग्यता या क्षमता होना, उसके लिए कैन का प्रयोग होता है। इसलिए हम कहेंगे आई कैन। ठीक है, तो ये देखिए अंग्रेजी में जो मॉडल ऑक्सिलरी है ना, दे आर 13 मॉडल ऑक्सिलरी है। फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need, use। तो ये 13 जो है ना, दे आर कॉल्ड मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरी। एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 4 to 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? ये क्वेश्चन ये होते हैं दो तरह के। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल। ये सेंटेंस है कि ही रैन एज फास्ट एज ही, और खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, ब्रैकेट में उसने दे दिया कैन, तो आपको यहाँ भरना पड़ेगा कुड। कि पास्ट एबिलिटी के लिए कुड आता है, ही रैन एज फास्ट एज। एक तो ये प्रश्न होता है। और कई बार क्या करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि जैसे ही टू पास द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और ब्रैकेट में उसने दे दिया फ्यूचर एबिलिटी। वो आपको 4 चॉइस देगा, शैल, विल, ठीक है, विल बी एबल टू और कैन। तो आप कहेंगे ही विल बी एबल टू। तो जो फ्यूचर एबिलिटी है उसके लिए हम विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं, कैन का नहीं कर। कैन का प्रेजेंट एबिलिटी या पास्ट एबिलिटी के लिए खुद का यूज करते हैं। तो देखिए दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, वो हमारा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली एडजेक्टिव्स, जो विशेषण होते हैं ना, उनमें होते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। Gradable adjectives are those adjectives which can be changed into degrees। अब आप कहेंगे सर डिग्री का क्या मतलब है, तो MA BA की डिग्री तो नहीं है। देखिए देर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। पहली को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरी को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी को भाई कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी क्वालिफाई only one person or one thing, we use the positive degree। जैसे माथुर इज इंटेलिजेंट, इसमें हमने तुलना नहीं की, माथुर की नहीं की ना किसी से, सिर्फ माथुर की एक व्यक्ति की योग्यता को बताया है। तो वी यूज द पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी क्वालिफाई, और यह विशेषता बताते हैं ओनली वन थिंग और वन पर्सन और वन। When there is a comparison between two objects or two persons or two things, we use the comparative degree। जैसे मोहन इज टॉलर देन सोहन, तो टॉल की कंपेरेटिव डिग्री है टॉलर। हमने दो की तुलना की है, किसकी, मोहन और सोहन की, तो हमने टॉलर का प्रयोग किया। ठीक है, इसी तरह से हम कहेंगे कि राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो हम कहेंगे राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। ये डिग्री। फिर एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन मोर देन टू थिंग्स और टू पर्सन्स, वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड बेटर बेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट।
तो सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू थिंग्स और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों में या दो से अधिक वस्तुओं में होती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन किस तरह का आता है? तो ये क्वेश्चन जो आता है वो होता है चेंज ऑफ डिग्रीज। जैसे चेंज दी पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और वाइस वर्सा। ये आपको एक सेंटेंस दे देंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री का, आपसे कहे हुए इसको कंपैरेटिव में बदलो या इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलो। या दूसरा ये होता है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री का या कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दे दिया और उसको पॉजिटिव डिग्री में बदलवाए, ठीक है ना। जैसे द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब वो कहेगा भाई इसको तो तुम कंपैरेटिव में बदलो, तो कंपैरेटिव होगा कि नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज हायर देन द हिमालय। ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। तो जो क्वेश्चन होता है वो चेंज ऑफ डिग्रीज पे होता है और इस पे कभी 2 कभी 3 प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं इस टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट है वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कनकोड कहते हैं, CONCOR। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स कि इन इंग्लिश ग्रामर या इन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कि अंग्रेजी के वाक्य में जो क्रिया है ना वो कर्ता के अनुसार लिखे। इसका अर्थ पता है क्या? इसका अर्थ है अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही एक वचन है तो गोज आएगा, लेकिन अगर दे हो तो हम कहेंगे दे गो टू स्कूल, क्रिया प्लूरल है दे, सब्जेक्ट प्लूरल हमारा होगा वर्ब, दे गो टू। तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए देयर आर अबाउट 23 to 25 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इसके करीब 23-24 रूल हैं, उनको आपको अच्छी तरह अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें एग्जाम्पल दिए होंगे, हम आपको समझाएंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना कोई मुश्किल नहीं है। समझ गए ना? जैसे क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज रिक्त स्थान ब्लैंक वन द फर्स्ट प्राइज, ये आ गया। अब इसमें अब हैज़ हो जाएगा, हैव हो जाएगा, समझ गए, हैविंग हो जाएगा। तो वन ऑफ द बॉयज में सब्जेक्ट वन है, बॉयज नहीं है, तो यहाँ हैज़ आएगा कि वन ऑफ द बॉयज हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये आपको समझना। देखिए सबऑर्डिनेशन मीन्स द यूज ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस and coordination means the use of the coordinate conjunctions. So you will have to know what is a conjunction. तो देखिए आपको ये जानना है
कि कंजंक्शन क्या होते हैं। देखिए, कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये योजक होते हैं, जोड़ने वाले शब्द होते हैं। तो दे ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंस। जैसे राम एंड श्याम, दो शब्द को एंड ने जोड़ दिया। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर एंड योर ब्रदर इज ए लेक्चरर, यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये हो गए। दूसरा है दिस इज द बॉय, ये क्लोज है। हु वन द फर्स्ट प्राइज, ये क्लोज है। इसको हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन के यूज है, इसमें जोड़ दिया। तो ये सबॉर्डिनेशन सबॉर्डिनेशन और जो कोऑर्डिनेशन है ना, इनमें हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। और सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड्स, की रचना के अनुसार वाक्य तीन या चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें केवल एक ही क्रिया होती है, जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, सिंपल। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो क्रियाएं होती है, दो क्लोज होती है। राम इज रिच बट श्याम इज पुअर, यहाँ दो हो गए, ये कंपाउंड है। एक होता है कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक तो सिंपल सेंटेंस होता है और एक क्लोज जो है सबॉर्डिनेट होती है, एक मेन क्लोज होती है कि दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट। ठीक है, तो ये उसमें हमको चेंज क्या करना पड़ता है, सिंपल को कंपाउंड में या कम्प्लेक्स में बदलना, या कम्प्लेक्स को कंपाउंड या सिंपल में बदलना, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये करीब करीब 4 to 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये 5 या 4 क्वेश्चन सबऑर्डिनेशन। देखिए, वी हैव डन subordination and coordination. I have told you in detail about subordination and coordination. Our next topic is conditional sentences. देखिए, conditional sentences are those sentences in which some condition is given. Actually, conditional sentences are of three kinds, and questions may be asked on all the three kinds. Generally, there are 3 to 4 questions on conditional sentences. The first condition is the probable condition, जिसको हिंदी में संभव शर्त कहते हैं। संभव शर्त का मतलब होता है पॉसिबल कंडीशन, जो बोलने के समय या भविष्य में संभव होती है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये संभव है। कि अगर समय पर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये भी संभव है। असंभव तो नहीं है। तो ये है प्रोबेबल या पॉसिबल कंडीशन, और इसको अंग्रेजी में ओपन कंडीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी कंडीशन होती है इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है भैया असंभव शर्त। तो असंभव शर्त वो होती है कि जिसके बोलने के समय पूरे होने की संभावना नहीं। और कई असंभव शर्त वो होती है कि जिनकी कभी भी पूरे होने की संभावना नहीं होती, दे आर नेवर फुलफिल्ड, तो दे आर कॉल्ड इम्प्रोबेबल कंडीशन। जैसे इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता। आदमी कभी पक्षी नहीं बन सकता और कभी उड़ नहीं सकता, यह है इम्प्रोबेबल कंडीशन। और थर्ड कंडीशन होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल में अधूरी रही शर्त। तो क्या शर्त पूरी हो सकती थी, लेकिन किसी वजह से पूरी नहीं हुई और वो भूतकाल में अधूरी रह गई। यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, संभव था मेहनत करना। यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी पकड़ लेते। तो ये तीनों जो कंडीशन है ना, इनके पैटर्न या इनका स्ट्रक्चर या इनमें वाक्य की रचना अलग अलग प्रकार की होती है। तो देखिए,
हमको वहाँ पर क्या सीखना होगा कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उन सेंटेंसेस में दो क्लोज होती है। एक तो होती है कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कंडीशन होती है, और दूसरी होती है रिजल्ट क्लोज जिसमें उस कंडीशन का परिणाम होता है। जैसे इफ़ यू हैड रीच द स्टेशन इन टाइम, ये तो कंडीशन है, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचे, तो यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो ये उसका रिजल्ट होता, गाड़ी पकड़ लेते। तो ये देखिए, दीज आर थ्री काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। एग्जामिनेशन में भाई तीनों में से तीन तरह के भी आ सकते हैं, और दो तरह के तीन या चार भी आ सकते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस जो है ना, ये समझना बड़ा आसान भी है, और ये स्कोरिंग है कि आप जरा सी मेहनत करोगे ना तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं वाक्य परिवर्तन। आप कहेंगे सर वाक्य परिवर्तन क्या होता है? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू अनदर। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर या अंतर्गत कई प्रकार के वाक्य आते हैं। जैसे क्या है, एफर्मेटिव टू नेगेटिव। जैसे ही इज रिच, नेगेटिव है ही इज नॉट रिच। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। तो एफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना और नेगेटिव को एफर्मेटिव बनाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन बनाना। जैसे ही विल सक्सीड नेक्स्ट ईयर, तो इसका क्वेश्चन है विल ही सक्सीड नेक्स्ट ईयर। रमेश कैन स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन है कैन रमेश स्पीक इंग्लिश। तो एफर्मेटिव को प्रश्नवाचक में बदलना। या इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, जिसमें प्रश्न भी होता है नेगेटिव भी होता है। जैसे वाई कांट यू हेल्प योर ब्रदर, तो ये नेगेटिव भी है, इसमें क्वेश्चन भी है। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दे एक्सप्रेस आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये हमारी तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तीव्र भावना कौन सी होती है? खुशी है, गम है, दुख है, सुख है, पीड़ा है, ये। जैसे हम कहते हैं अलास द पुअर मैन इज डेड, हुर्रा वी हैव वन द मैच। ये एग्जामिनेशन में क्या आता है? चेंज ए सिंपल सेंटेंस इनटू एन एक्सक्लेमेटरी, या चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। तो ये भैया होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, एक है एक्टिव एंड पैसिव, और दूसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक्टिव और पैसिव क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट, हम कर्ता पर जोर देते हैं। जैसे सत्यवचन रोट ए लेटर। और पैसिव वॉइस में क्या है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं कि ए लेटर वाज रिटन बाय सत्य प्रकाश। ही किल्ड ए स्नेक, ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। ये है एक्टिव का पैसिव। तो एग्जामिनेशन में क्या आता है, एक्टिव का पैसिव बनाओ, कभी कभी पैसिव का एक्टिव भी बनाते हैं। एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए, व्हेन वी स्पीक वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज इन टू वेज। हम अपने विचारों को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक तो क्या है, व्हेन वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, कि जब हम वक्ता या बोलने वाले के शब्दों का जैसे का तैसे लिख देते हैं। जैसे स्टीवन ने ये कहा, प्लीज हेल्प मी। तो स्टीवन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी, कॉमा क्लोज। ये है डायरेक्ट स्पीच। एंड व्हेन वी चेंज Steven's statement into our own statement, it is called the indirect speech. Indirect speech में हम बोलने वाले की बात को अपने शब्दों में कहते हैं।
तो ये बन जाएगा शिविन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। तो ये कहलाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आमतौर पर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेजल वर्ब। देखिए, फ्रेजल वर्ब is an important part of English language. What is a phrasal verb? When we add a preposition after a verb and its original meaning changes, it is called a phrasal verb. कि जब हम क्रिया के बाद प्रपोजिशन जोड़ देते हैं और उस प्रपोजिशन का उस क्रिया का शाब्दिक अर्थ बदल जाता है, दूसरा अर्थ वो ग्रहण कर लेती है, तो हम उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे ब्रिंग अप, तो भाई शाब्दिक अर्थ में ब्रिंग माने लाना, अप माने ऊपर। आप ऊपर खड़े हो, गेंद गिर गई आपसे हाथ से, नीचे कोई खड़ा है उससे कहते हैं अरे भैया गेंद ऊपर लिया, तो वो होगा ब्रिंग द बॉल अप। ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन मीनिंग है वो वर्ब का वो बदला नहीं। फ्रेजल वर्ब में क्या है, ब्रिंग अप का मीनिंग बदल जाता है पालन पोषण करना। टू रियर एंड एजुकेट, बच्चे का पालन पोषण करना। जैसे ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल, कि उसका पालन पोषण उसके चाचा के द्वारा हुआ। तो ये हमारे कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब जो है ना, दे आर हंड्रेड्स। अंग्रेजी में आपको सैकड़ों मिलेंगे, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, 2000 भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि देर आर इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब गिवन इन एवरी गुड बुक, कि हर अच्छी किताब में करीब 300-400 फ्रेजल वर्ब दिए होते हैं। आप एक एक फ्रेजल वर्ब की स्टडी करो अच्छी तरह, उसका मीनिंग देखो और उसके अपने सेंटेंस में उसको बदल लो, बना लो, तो आपका फ्रेजल वर्ब तैयार हो जाए। फ्रेजल वर्ब के बाद है नेक्स्ट है प्रोवर्ब, लोकोक्ति और मुहावरे। ये अभी जोड़ा गया है, पहले नहीं था। तो प्रोवर्ब जो है, हम कहते हैं डेथ डे इज डूम्स डे, आप मरे जग पढ़ ले, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये भी प्रोवर्ब है। तो ये प्रोवर्ब है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, प्रोवर्ब दे देंगे, उसके 4 आपको मीनिंग दे देंगे, उसमें से आपको सही। तो ये देखिए, ए गुड बुक, ए गुड ग्रामर contains a number of proverbs and questions on them। फिर है idiomatic expressions, जिनको हम idioms भी कहते हैं। तो idiom भी क्या होता है, हिंदी में इनको हम मुहावरेदार भाषा कहते हैं। idiom वो होता है जिसमें जो वर्बल मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, एंड इट एक्वायर्स ए न्यू मीनिंग। जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो भाई एप्पल का मतलब तो सेब होता है, ठीक है। डिस्कॉर्ड माने होता है असहमति या झगड़ा, तो झगड़े का सेब क्या होता है, ये नहीं है अर्थ। लेकिन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। जैसे कश्मीर या कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये ईडीएम है। बहुत सारे ईडीएम है। ईडीएम आपको याद करने पड़ते हैं, मतलब रीड important idioms, know their meaning, and gentlemen and dear students, use them in your sentences। कि अगर आप किसी ईडीएम का अर्थ समझकर अपना खुद का वाक्य बना लो ना, तो उस ईडीएम को आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। जैसे देखिए, व्हेन आई वाज इन द 8th क्लास आई केम अक्रॉस द ईडीएम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और उस वक़्त हमारे टीचर ने बताया था
कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब वो मुझे 50 साल से 60 साल से वो याद है, ये झगड़े की जड़ है। इसी तरह होता है बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन का अर्थ तो हड्डी होता है, कंटेंशन मैंने विवाद, विवाद की हड्डी, कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन ईडियम के रूप में इसका अर्थ है झगड़े की जड़। तो ये जैसे कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये ईडियम एंड फ्रेजेस आपको किसी भी अच्छी किताब में मिल जाएंगे, उनको आप याद कीजिए और उनका प्रयोग। एग्जामिनेशन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन ईडियम्स पर आते हैं। तो उसमें क्या है, किस तरह के आते हैं? एन ईडियम इज गिवन, 4 मीनिंग्स आर गिवन एज ऑप्शन। उसके 4 अर्थ दिए गए, आपको जो सही अर्थ है ना उसको चुनकर और उसका आंसर आपको भरना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड। तो ये देखिए, मिस स्पेल्ड और कंफ्यूज्ड जो है ना, इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। मिस स्पेल्ड में एक तो ये आता है कि आपको एक वर्ड दे दिया, उसकी 4 स्पेलिंग दे दी, 3 उसमें गलत है, एक स्पेलिंग उसमें सही है, तो आपको सही को चुनना है। ये तो हो गया मिसस्पेल्ड। और ऑफन कंफ्यूज्ड में क्या है, इनको अंग्रेजी में पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं कि एक जैसे 2 शब्द है, उनका उच्चारण एक जैसा है, स्पेलिंग उनकी अलग अलग है और उनके मीनिंग अलग अलग है। जैसे प्रिंसिपल, PRINCIPAL, इसका मतलब है प्रिंसिपल माने कॉलेज का या स्कूल का प्रिंसिपल। और एक होता है PRINCIPLE, इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। जैसे गांधी वाज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक ये हमारा टॉपिक है, इसमें भी एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। 3-4 जरूर पूछे जाते हैं, ज़्यादा भी पूछ लेता है। हमारा नेक्स्ट है सिनोनिम एंड एंटोनिम। देखिए, सिनोनिम एंटोनिम में ये 2 अलग अलग चीज़ें। सिनोनिम को हिंदी में पर्यायवाची शब्द है। सिनोनिम का मतलब है वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग। मतलब शब्द जो है ना, जैसे हम कहते हैं हैप्पी, हैप्पी का डिलाइटेड भी हो सकता है, ये इसका पर्यायवाची। स्ट्रॉन्ग, इसका पर्यायवाची पावरफुल भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है। तो ये पर्यायवाची शब्द है। तो उसमें क्या है, एक शब्द होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको उसको करेक्ट चुनना पड़ता है। इसी तरह होता है एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स, जिसको हिंदी में विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलियम और विपरीतार्थक का शब्द पता है क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपोजिट इन मीनिंग। जैसे गुड, बैड, आप समझ गए ना। हाई, लो, ठीक है। कॉस्टली, चीप या इनएक्सपेंसिव। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। ये तो है कि जितने आप याद करें, इनका आप मीनिंग देखो, अपोजिट देखो, उसका मीनिंग देखो, आप you will be able to learn them properly. And the last topic is a bit difficult, phonetic transcription and word stress. ये फोनेटिक्स माने जाते हैं ध्वनि विज्ञान। फोनेटिक्स में क्या है, सिंबल होते हैं, फोनेट सिंबल। तो वर्ड को फोनेटिक्स में बदलना और फोनेटिक सिंबल को वर्ड में बदलना। तो ये 2 जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं और एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए, वी हैव डिस्कस्ड और एनालाइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज ग्रामर एंड यूजेस ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये हमने अच्छी तरह से
आपको समझा दिया। नेक्स्ट करें। अब हमारा पार्ट है सेकंड। सेकंड पार्ट है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। इसमें है ग्रामर, यूजेज एंड लिटरेचर। इसमें देर आर 9 टॉपिक्स। तो ग्रामर में हमारा पहला क्या है? सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न को कहते हैं वाक्य की संरचना। कि वाक्य जो है ना, उसके एलिमेंट्स है। देखिए, सेंटेंस के एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब। ये एसेंशियल एलिमेंट है कि कोई भी वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब के बिना नहीं बन सकता। जैसे ही गोज, द बॉयज प्ले, इट रेन्स, छोटे छोटा वाक्य है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा। फिर अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे ही किल्ड, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ही किल्ड ए स्नेक। ठीक है। और फिर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। जैसे ही प्लेज फुटबॉल डेली, ये एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस पैटर्न जो है ना, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, देयर आर 7 बेसिक सेंटेंस पैटर्न। इन ऑल देयर आर 25 पैटर्न्स। कि अंग्रेजी का आप कोई भी वाक्य बोलिए, वो 25 में से एक पैटर्न में होगा, उसके बाहर नहीं होगा। तो ये देखिए, इफ यू वांट टू लर्न ए लैंग्वेज, यू मस्ट नो द पैटर्न ऑफ दैट लैंग्वेज। भाई, अगर आपको, आप समझ रहे हो ना, किसी भाषा की ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका पैटर्न, सेंटेंस की रचना, उसको आप जान जाइए, आप सेंटेंस अपने आप बना लेंगे। तो सेंटेंस पैटर्न में 4 या 5 क्वेश्चन आते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। फ्रेज माने होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह। एनालिसिस माने होता है उसका विश्लेषण करना। MHM का मतलब पता है क्या होता है? मतलब MHM, हेड वर्ड, मॉडिफायर और फिर मॉडिफायर। हेड वर्ड है, जैसे देखिए, माई फ्रेंड महेश इज एन इंजीनियर। इसमें जो हेड वर्ड है वो है महेश। उसका प्री मॉडिफायर क्या है? माई। पोस्ट मॉडिफायर है फ्रेंड। तो फ्रेज को MHH, मतलब प्री मॉडिफायर, हेड वर्ड और पोस्ट मॉडिफायर जो बाद में लगे, उसके अनुसार उसकी एनालिसिस करना, ये कहलाता है फ्रेज एनालिसिस। फिर एक क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका। क्लोज क्या होता है? क्लोज इज a group of words which has a subject and verb of its own and it has some meaning. स्पोका होता है सब्जेक्ट, पी माने होता है प्रेडिकेट वर्ब, ओ माने ऑब्जेक्ट, सी माने कंप्लीमेंट और ए माने होता है एडवर्ब। तो ये सेंटेंस के ज़्यादा से ज़्यादा 5 एलिमेंट है। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है। इसको, किसी भी क्लोज को एनालाइज करना। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकेबुलरी। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन माने होता है टू रीड ए गिवन पैसेज, अंडरस्टैंड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो जनरली ए शॉर्ट पैसेज ऑफ about 200 words या 150 word is given in the examination. 5 questions are asked in this comprehension passage. 4 they are textual question and the 5th question is on vocabulary. Vocabulary में या तो मीनिंग पूछेंगे या सिमिलर या अपोजिट वर्ड पूछेंगे। ये तो ये भी आप पढ़कर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और ये सरल भी है। देन पोएट्री एप्रिसिएशन। देखिए, पोएट्री एप्रिसिएशन में ए पोएम इज गिवन, 5 क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन दैट पोएम। उस पोएम पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। द क्वेश्चंस आर अबाउट द थीम ऑफ द पोएम, कि उसकी थीम या विषय वस्तु क्या है।
अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस, ये सिमली मेटाफर वगैरह उसमें कौन कौन से यूज हुए। अबाउट द राइमिंग स्कीम, जो तुकबंदी होती है कि कौन सी लाइन का आखिरी ध्वनि कौन सी लाइन के आखिरी ध्वनि से मिलती है, ये पूछा जाता है। पोएट्री के बाद है लिटरेरी फॉर्म्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। देखिए लिटरेरी फॉर्म्स क्या है, इसको हम कहते हैं साहित्यिक विधाएं। जैसे पोयम है, पोयम एलेजी होती है, पोयम सोनेट होती है, पोयम बैलेड होती है, पोयम ओड होती है, पोयम एपिक होती है, मोक एपिक होती है, ड्रामेटिक मैनोलॉग होती है। तो ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो डिवाइसेज है ना, इसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो अलंकार है सिमली, मेटाफर, हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन, सेटायर, आयरनी, ऑटो, समझ गए, ओनोमोटोपोइया, ये सब पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है एक्विंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स, लिटरेरी पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये 6-7 इम्पॉर्टेंट है। जैसे रिनासा पीरियड, जो 16वीं शताब्दी के पहले का साहित्य है। उसके बाद हम कहेंगे एलिजाबेथन पीरियड, क्लासिकल पीरियड, विक्टोरियन पीरियड। ये सब पीरियड्स का है, उसमें पीरियड्स का टाइम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसके इम्पोर्टेंट ऑथर्स, ये हमारी किताब में दिए हुए हैं। ये आपको पढ़कर समझना पड़ेगा। इसके बाद है मेजर लिटरेरी पीरियड, ये हो गया। फिर है लिटरेरी मूवमेंट, इस साहित्य में जो मूवमेंट हुए, जैसे रोमांटिसिज्म है, ये एक लिटरेरी मूवमेंट है। गोथिक है, प्री रेफलाइट मूवमेंट था, रियलिज्म है, एक्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, सिंबोलिज्म है। इन सब के बारे में जानना जरूरी है, और इन पर भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा लास्ट इसमें है एक्विनेंस विद 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स, पोएट्स इन इंग्लिश। देखिए इसमें एक्चुअली 20th सेंचुरी नहीं है, देयर आर 15 राइटर्स, ये 15 इंडियन राइटर्स हैं। इसका मतलब है दे आर बॉर्न इन इंडिया और दे आर इंडियन बाई ओरिजिन बट दे राइट इन इंग्लिश। तो इनकी जो रचनाएं हैं ना, ये पोएट्स हैं, नावलिस्ट हैं, एक दो इनमें ड्रामेटिस्ट भी है। तो इनकी रचनाओं का अध्ययन, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अबाउट देयर, जानते हैं कि अबाउट प्रश्न होते हैं आमतौर पर अबाउट देयर पोएटिक क्रिएशन, उनकी कविताओं के बारे में या उनके नावल के बारे में, ये जो है ना ये पूछा जाता है। इसके बाद और इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर तो देयर वर 30 क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन इंडियन राइटर्स। ये देयर आर 15 इंडियन राइटर्स एंड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी इंडियन राइटर्स प्रॉपरली। इसकी स्टडी में आपको क्या करना है, इनकी राइटर का देखिए एजुकेशन कहाँ हुई, इनका लिटरेरी जानर क्या है, ये पोएट है या नॉवलिस्ट है या ड्रामेटिस्ट है या प्रोज राइटर है। फिर इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स और इनके इम्पोर्टेंट वर्क की समरी एंड देयर कैरेक्टर, कि उनके जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको सारा जानने की ज़रूरत है। अब हमारा लास्ट जो है ना पार्ट 3, इट इज़ अबाउट टीचिंग मेथड्स। देखिए टीचिंग मेथड को अंग्रेजी में कहते हैं शिक्षण विधि। तो मेन जो टीचिंग मेथड्स है ना, 4 है। उन चारों को आपको स्टडी करना है, कि जैसे डायरेक्ट मेथड एक, उसके बाद है स्ट्रक्चरल मेथड, उसके बाद है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ये चारों मेथड टीचिंग के एट डिफरेंट टाइम्स दे हैव बीन
practiced by teachers. तो इनकी है व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर देयर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद है कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CLT। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट्स ए मॉडर्न टेक्निक ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश। कि जो लेटेस्ट टेक्निक है अंग्रेजी सीखने और सिखाने की, उसको कहते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, देखिए 4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना लिटरेचर में, टीचिंग ऑफ पोएट्री, टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड टीचिंग ऑफ कंपोजिशन। ये 4 चीज़, इनके बारे में कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, what are the important points of teaching prose, what are the important points of teaching composition। समझ गए ना, इनको पढ़ाने की क्या क्या चीज़ें जरूरी है। देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये देखिए देर आर अबाउट 15 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत। ये करीब करीब 10-12 हैं इम्पोर्टेंट। तो वो क्या हैं, और जो लास्ट हमारा है वो है सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। ये है टीचिंग मटेरियल कि टीचर को क्या पढ़ाना है, सिलेक्शन, उसको ग्रेडेशन कैसे करना है, पहले क्या पढ़ाएं बाद में क्या है, उसके बाद प्रेजेंटेशन कि हाउ द मैटर इज़ टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, और फिर टेस्टिंग कि पढ़ाने के बाद टेस्ट लेना, कितने प्रकार के टेस्ट है और कौन सा टेस्ट बेस्ट है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ानी है। तो देखिए दिस इज द एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। ये सिलेबस की एनालिसिस है। इस एनालिसिस के बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वो इसके बाद की चीज़ होगी, और वो ये एनालिसिस आपको बता दिए। एनालिसिस के बाद हम डिस्कशन ऑफ सिलेबस हो गया। वेटेज पर टॉपिक, कि कल हम आपको बताएंगे या नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे वेटेज पर टॉपिक, कि हर टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाए, उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर डिफरेंट पार्ट्स, इन तीनों पार्ट्स की तैयारी कैसे करें। थैंक यू वेरी मच।